So my name is Sadhvi Sen, and I am your 61st Femina Miss India World 2026. And today I'm just here, coming back to the soil that I was born in, and I'm super excited to hear what your questions are. Please feel free to ask me anything, and I'll try my best to answer it with the full sincerity and honesty, so that we all get some clarity about my journey and where I'm going. What is your Goan background? What is your education? Where you related to the Goa? This has been a very popular question actually. So I was born here in Goa. I was born in Vasco, and up until I was 7 years old, I was raised here itself. But then, because of my dad's work and migration, and at that time the climate here was not that great, so we moved to the outskirts of Goa and Karnataka, which is Karwar. And the reason we stayed in Karwar is also because my parents did not want me to lose touch with my Goan roots. So that just felt like the best spot to be and to celebrate both my Goan roots and the fact that I'm living in Karnataka. So I think that एक होता है लोगों की एक जन्मभूमि होती है एक कर्मभूमि होती है like many of you might not be living in Goa or at least for work many of you have migrated to different places so I don't think that moving somewhere makes me any less Goan. I'm born here and I have Goan blood and that's the reason that I am representing Goa and this time I got the honor of doing justice to my Janmabhoomi and my Karma Bhumi being Karnataka. Someday maybe I'll do justice to that. But today I stand here not just as a Goan, but as an Indian, right in front of you, representing all the states and all the union territories of our country. And I hope to learn more about every culture so that I can represent it the best during Miss World. Thank you. Any awkward input for movies and all? Well, it's just been about 2 weeks, and we have been getting quite some big campaigns. As you know, that Femina Miss India is also taken up by Times Group, right? So they have really good industry connections, and it has been such a legacy. And because of the backing that they have, the backing that Times Talent has, I've been getting a lot of offers for advertisements and all of it within just 2 weeks of crowning. In fact, we are trying to manage how do we manage my appearances here and also, commit to other work as well. But if your question is if I ever want to get into movies, I would say that right now I have a very big responsibility. So ये ताज अपनी एक responsibility के साथ भी आता है, which is to represent our country on Miss World platform. And I only have about a year to prepare for it. So right now that's my main focus. हाँ अगर कोई मूवी ऑफर आती है एंड देन इफ़ आई एम स्किल्ड इनफ क्योंकि मूवी एक्टिंग ये एक कला है इसको सीखने में भी बहुत वक्त लगता है तो आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट एंड मे बी समडे अगर भगवान चाहे कि तब मैं स्किल्ड भी हूँ और मेरे लिए करेक्ट अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट हो तो व्हाई नॉट बट फॉर नाउ मिस वर्ल्ड इज माई बिगेस्ट गोल. What was the most difficult part when you have been in this journey for you? I think the most difficult part is sort of to believe कि इतने सारे जो लड़कियां हैं उनमें से तुम एक ऐसी लड़की हो सकती हो जो जीत पाए तो ये सेल्फ डाउट हम सबको होता है लाइक कोई जॉब एप्लीकेशन लगाने से पहले आप भी सोचते हो 10 बार कि मिलेगा ये मुझे या नहीं तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मैं उस डर के कारण मैंने अपना प्रेपरेशन बहुत डिले किया प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसे तो मैंने काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट किया बट एक चीज़ जो है जो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत बोला करते थे कि आपके फ्रेंड्स या तो आपके लाइफ को मेक कर सकते या फिर ब्रेक कर सकते तो मेरी कंपनी काफ़ी अच्छी थी एंड मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी पुश किया कि जब मैं भी डाउट में थी वो मेरे साथ ऑडिशन में आए पूरा टाइम और उन्होंने मेरी पूरी मदद की है तो उस रीज़न की वजह से मैं आज इधर हूँ कि जब मुझे खुद पे डाउट था तब उन्होंने और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया तो इसी करेज के साथ मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया है. Though being a youngster, what message you want to give the other youngsters for in this field?
for the young generation? Right. I think there's a lot of stigmas related to pageants, but I think that agar you want something very badly in your life, then you should go give it a shot. Because आप फेल हो सकते हो एंड देन आप वापस उठ सकते हो, बट अगर आपके पास एक वो रिग्रेट रह जाता है लाइफ में, तो देन यू विल नेवर बी एबल टू शेक इट. पूरा लाइफ व्हाट इफ के चक्कर में ही निकल जाएगा. तो माई ऑनेस्ट एडवाइस is if you love something, put your full effort with all honesty and sincerity and go after it, and you never know what might work out for you. And I'm not just saying this as a winner. शायद अगर मैं विन भी ना होती तो भी वो एक विजिबिलिटी जो ये प्लेटफॉर्म देती है उससे बहुत कुछ बदल सकता है किसी के लिए. एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स who want to get into this industry, it's a very great platform. तो मेरा ये मानना है कि अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने रूट्स को भी कभी मत भूलिए. जैसे कि हम सभी के अपब्रिंगिंग, हमारे हम्बल बिगिनिंग्स बहुत अलग होते हैं, और एक बार आप किसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो आप अपने लोगों को भूल जाते हो. बट मेरा ये मानना है कि हमेशा जिन्होंने आपकी पूरी मदद की है उनको हमेशा याद रखिए, उनके साथ मिलकर आगे बढ़िए, तो बहुत अच्छा सिंपल हो जाता है सब कुछ. Anything for Goans in Konkani you want to say? So my Konkani obviously is also shaped by Karwar Konkani. But मागेल एकूच तुमका मेसेज होता कि as Goans, as Karwarians, कोण भी आता मागेल मेसेज पडते असत. What we are representing आता ते it's a far bigger feat what we have achieved. Let's not get hung up की गोवा, कारवार अशें. We are all, आम्ही सगळे लोक सेम कोंकणीच उलयतात. हय तेतूंत इल्ले डायलेक्ट चेंज आसा, इल्ले स्पश्ट वेगळे लोक इल्ले एक्सेंट इल्ले वेगळे आसा. सो हेचे वयर खूब फोकस करनाकात, बिकॉज वॉट आर वी प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड? वी आर शोइंग दैट वी आर डिवाइडेड इवन एज नेबर्स. इन अ स्मॉल स्टेट टू स्टेट हम डिवाइडेड दिखा रहे हैं अपने आप को. तो लेट्स नॉट स्प्रेड एनी हेट, लेट्स बी काइंड. सगळे लोक बरे करून हासत खेळत रावया. म्हाका बी तुमगेलो खूब सपोर्ट जाय, आनीक हांव बी तुमकां रिप्रेजेंट करच्याक खूब हांव खूब प्रिपरेशन केलां. सो तेजे एक म्हाका एक मातशें तुमगेल सायडीनच्यान इल्लें सपोर्ट मेळ्ळ्यार आय विल बी मच हॅपी. How you are looking for this Miss World competition? Well, right now the preparation has already begun. We've just started with our etiquette class, which teaches you like table manners, and you'll be sitting with a lot of diplomats, lot of world leaders and people from various countries. So ये छोटे छोटे मैनरिज्म्स जिसको यूज़ करके आप पोलाइटनेस दिखाते हो या फिर रिस्पेक्ट दिखाते हो लोगों को. We've already learned that. And our preparation will include voice modulation, अपना GK वगैरह, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना, and also how to improve your walk, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करना होता है. ये सारी चीज़ें छोटी लगती हैं सुनने में भले, बट आप जब उसको इन डेप्थ समझते हो तब ये बहुत वास्ट टॉपिक है. तो अभी फ़िलहाल इसी चीज़ की तैयारी चल रही है, पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो दैट हमारी निकिता पोरवाल जी, उनका इसी साल वो अभी मिस वर्ल्ड के लिए जा रही है, तो उनको भी सपोर्ट कीजिए. भले ही वो गोवा से नहीं है, हम सभी भारतीय हैं, तो सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए. मैम, ये कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मैं अपने कामयाबी का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स और मेरी नानी को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी जर्नी ने मुझे इंस्पायर किया है. कि ऐसा एक वक्त था जब मेरी नानी, मतलब यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड शी इज़, एंड at that time she was raising like 4 daughters with just a simple income of sewing. My grandfather, मेरे नाना, he was a havildar. तो they have come from very humble beginnings, and उस टाइम पे उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी करवाई, जो बहुत बड़ी बात है. एंड उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स ने भी किया है, उसी की वजह से मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ. साथ ही में मैं जब पहली बार इस फील्ड में उतरी थी तब मैं ऑलमोस्ट 10 kg हेवी थी, आज से ज़्यादा. एंड तब मेरे जो फ्रेंड्स हैं कि मुझे करना है, तो मेरे साथ वो हर दिन बिना एक दिन भी मिस किए हर दिन मेरे साथ जिम आया करते थे.
तो और मेरे हर ऑडिशन के टाइम पे भी 7-8 घंटे वो लोग बाहर बैठ के मेरा वेट करते थे। आजकल के ज़माने में ये कोई नहीं करता। तो मेरा इस चीज़ का श्रेय एक तो मेरी मिट्टी के लिए जाता है, बिकॉज दिस सॉइल हैज़ टॉट मी रेजिलियंस। यू नो, हमारे फिशरमैन को ही देख लीजिए आप, सुबह उठते हैं, बोट लेके निकल पड़ते, पता नहीं आज का दिन कैसा होगा, मिलेगा कुछ या नहीं, बट वो इस हिम्मत के साथ जो निकलते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो निकलते हैं, आई थिंक दैट हैज़ शेप्ड माई लाइफ अ लॉट। एंड ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, एंड एनीबडी हुज एवर सपोर्टेड मी और डीमोटिवेटेड मी, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑल ऑफ इट लीड्स टू टुडे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। Just to talk about these soils, मिट्टी से क्यों कुछ है? जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हम रोड ट्रिप किया करते थे गोवा में, क्योंकि भले ही लाइक इट सीम्स लाइक अ वेरी स्मॉल स्टेट, देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर, वाटरफॉल से लेके बीच से लेके हर एक चीज़। एंड मेरे पापा को बहुत ड्राइविंग का शौक था, पिकनिक बनाने का बहुत शौक था। तो मेरे जो भी चाइल्डहुड पिकनिक्स हैं जो मुझे अभी तक याद है, वो मोस्टली गोवा में ही है, क्योंकि जब हम कारवार शिफ्ट हुए तब मेरे पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो गए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गई, तो उसके बाद ज़्यादा मुझे घूमने फिरने का मौका नहीं मिला। तो जो भी बाहर घूमना, यू नो, नंगे पैर घूमना, आजकल कोई करता नहीं है ये सारी चीज़ें। तो ये जो छोटी छोटी यादें हैं, मेरी सिर्फ गोवा से ही जुड़ी है। How much you miss Goa's fish curry rice? Oh my god, a lot. Actually, my favorite is the prawn curry. Of course, it's just unbeatable. And when I was studying in Canada, so after my studies in Karwar, I moved to Indus International School in Bangalore, and then from there I moved to Canada. And वहाँ पे most of the food is very bland. तो जो वो flavor, वो जो taste और वो जो मतलब you know बीच साइड बैठ के एकदम अपने दोस्तों के साथ सनसेट देख के खाना खाना, ये चीज़ बहुत याद आती थी मुझे, अभी तक आती है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि मैं ट्रेनिंग पे आई हूँ, तो मैं इस साइड बिल्कुल भी नहीं आई। तो खाना तो यहाँ का सबसे बड़ा स्पेशलिटी है, और हर कोई मतलब हमारा जो विंदालू है, चिकन विंदालू हर जगह पे फेमस है। इवन कनाडा में ये मेन्यू में डाला करते थे, लिखते थे कि गोवन स्पाइसेस, बट जो अपना गोवन स्पाइस है वो अलग ही है, उसका मज़ा ही कुछ और है। मैम, मॉडलिंग करियर क्यों आपने सिलेक्ट किया? ऑनेस्टली सर, अगेन मुझे हर फोटोग्राफी का काफ़ी पहले से शौक था। तो मेरे पापा वो हमेशा एक हैंडी कैम लेके घुमा करते थे, क्योंकि मैं उनकी पहली डॉटर, आपको तो पता ही होगा कि जो पहले बच्चे फर्स्ट किड्स होते हैं उनको बहुत प्रिविलेज मिलता है कि पेरेंट्स पूरा सब कुछ, वो इधर से उधर भी उठ के जाए तो भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वो यही क्या करते थे, मैं वो देख देख के बड़ी हुई हूँ। फिर मेरा फोटोग्राफी में भी ध्यान लग गया, जैसे कि मेरा ये आप देख सकते हैं टैटू है मेरे पापा के लिए। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे समझा कि मैं जितना मैं लेंस के पीछे भी एंजॉय करती हूँ उतना मैं लेंस के आगे भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और जब मैंने अपने दोस्तों को बोला तो उन्होंने बोला यू हैव टू डू इट। और मैंने सोचा एक ही लाइफ है, अगर एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करूँगी, अभी जब यंग हूँ तो तभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। तो हाँ, बस ऐसे ही घुसी थी एक मेगा मॉडल हंट जो प्रसाद बिजप्पा जी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एंड ही हैज़ लॉन्च्ड फेसेस लाइक दीपिका पादुकोण, अनुष्का, ऑल ऑफ दीज पीपल। तो तभी आई जस्ट वेंट फॉर एन ऑडिशन बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने अगेन मुझे फोर्स किया, एंड आई गॉट थ्रू। एंड उसके बाद से जो जर्नी निकली है, जहाँ मतलब जिस स्पीड से निकली है ना, एक 1.5 ईयर, बस इतना ही टाइम हुआ है मॉडलिंग करके। Who's being your role model for this journey? I think my role model is definitely my grandmother, and as I discussed earlier कि उनका जो ट्रेजेक्ट्री है, और मुझे ना बहुत मज़ा आता था क्योंकि मैंने आपको बोला जिसने मैं कारवार में आई शिफ्टेड तब मेरे पेरेंट्स थोड़े बिजी हुआ करते थे। तो मोस्टली मैं उनके बेड टाइम होने के बाद मैं उनके बाजू में जाके सो जाती थी, तो मैं उनको हमेशा उनकी स्टोरीज़ पूछा करती थी। तो उन्होंने जिस तरह मतलब संघर्ष किया है, उन्होंने जिस तरह पूरी सोसाइटी को फेस किया है, बस वो देख के मुझे बहुत करेज फील होता था कि पता नहीं, जैसे आपको लगता है ना कि आप कोई मूवी देख के आते हो तो अगले दिन आपको लगता है कि अगर मूवी का हीरो सोल्जर है तो आपको भी सोल्जर बनना है। तो
मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैं नानी की बातें बार बार सुना करती थी तो आई वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई वांटेड टू यू नो बी अ वॉइस फॉर अदर women एज वेल. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है where you can do that. How can you describe the word of struggle in your life, especially for the ये platform के लिए? I think before I get to struggle, I would like to be honest that I've had quite a lot of privilege. जो मेरे पेरेंट्स ने जितना स्ट्रगल किया उतना मैंने बिल्कुल भी नहीं किया एंड उनकी इस स्ट्रगल की वजह से आई एम हियर टुडे. बट एट द सेम टाइम स्ट्रगल थोड़ा रिलेटिव भी होता है. जैसे जब मैं इस जर्नी में आई थी तो काफ़ी सेल्फ डाउट था. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई वॉज मच हैवियर. तो स्ट्रगल एज सच बाहर से नहीं था बट मेरे दिमाग के अंदर ही था. दैट कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उस चीज़ का स्ट्रगल या फिर कनेक्ट्स बनाना, करेक्ट फोटोग्राफर से मिलना, ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री चीज़ें हैं जो इफ़ यू डू इट राइट देन इट वर्क्स आउट फॉर यू. बट टाइम लगता है, वक्त लगता है. तो इन दैट सेंस एंड एक डिसिप्लिन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आप सुंदर हो तो आप किसी मंच पे जाके चल लो और आपको ये खिताब मिल जाए. आपका वॉक पॉलिश्ड होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए. अभी आप जैसे जब मीडिया वाले ऐसे इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं तब उसका जवाब भी देना आना चाहिए. तो काफ़ी चीज़ें हैं इन पैजेंट्स के बारे में दैट पीपल डोंट नो. तो इन दैट सेंस आई वुड नॉट से स्ट्रगल बट इट वाज अ लर्निंग कर्व एंड इन दैट आई लर्न अ लॉट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई टुक दैट चांस. थैंक यू मम्मा पापा, थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स कि आपने मुझे तभी भी पुश किया जब आई वॉज रेडी कि नहीं यार इट्स ओके, शायद नहीं होगा. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि ये स्ट्रगल नहीं लगा. मैम कल कोई मूवी में आपको काम मिलेगा तो कौन से एक्टर के साथ आप काम करना पसंद करें? वैसे तो कोई भी एक्टर के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होगी. बट हाँ, एक फेवरेट एक्टर होते मेरे लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा जी हैं. बट अगर हमें ऐसे विशफुल थिंकिंग करना ही है तो लेट्स प्रे कि मेरा पहला मूवी इज़ अ फीमेल लीड मूवी, कि एक्टर ही नहीं है. फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, पूरा स्पॉटलाइट मुझे मिल जाएगा. तो हाँ, यही है मेरा जवाब.